میں نے لڑکی دیکھنے جانا ہے, انہیں 50,000 دا میک اپ کرانا اس دن. ٹھیک ہے, 50 کم کہہ دیا آپ دیکھیے, میں بائی دی بائی کریں, میں آئی ایم ناٹ جوکنگ, یہ غلط. میں کہتا ہوں جی 10,000 کا کروایا ہو, 5,000 کا کروایا ہو, جو ہے نا وہ سامنے آئیے. کیونکہ 2 مہینے بعد جب وہ آئے گا نا سالہ دفتر سے, تو ایک نئی مخلوق سامنے آتی ہے. نہیں کہتے شادی کے بعد نا جب عورت باتھ روم سے نکلتی ہے تو کہتے ہیں باجی آپ کون ہیں. وہ میں یہاں ٹو بی آن دی لائٹر نوٹ آپ لوگوں کے لطیفہ بھی سناتا ہے. گاری مرنے لگا نا تو اس نے اپنے سارے خاندان والے کو اکٹھا کر لیا. تو اس نے کہا بات سنو سارے بچوں, میں کوئی بیماری سے نہیں مرنے لگا, میں حیرت سے مر رہا ہوں. تو اس نے کہا جناب حیرت کس بات کی؟ کہتا میں نے 40 سال جو ڈیپلیکس کے باہر بیٹھ کے بھیک مانگی ہے, اور میں حیران ہوں جو لڑکی اندر گئی ہے کبھی باہر آئی نہیں. یہ بھی کیسز ہے. بالکل صحیح. اچھا میں آپ کو چھوٹے چھوٹے فیکٹر سمجھاتا ہوں. یہ آپ نے جو ہے نا اس کے ساتھ رہنا ہے. جب آپ ساتھ رہتے ہیں آپ کے بال بھی بگڑے ہوتے ہیں, آپ کے وہ صبح اسمیل آتی ہے منہ سے وہ بھی آنی ہے, یو نو بیفور یو برش یور ٹیتھ. آپ بالکل ایک نارمل پرسن کی طرح سامنے آئیے, تاکہ اس کے لیے کوئی اچنبھا نہ ہو اگلے 2 مہینوں بعد. پہلی بات. دوسری بات, مت بتائیے مجھے یہ پسند نہیں ہے. جب ہم ایک دوسرے کو پسند کر لیتے ہیں نا, اللہ کی قسم آپ اپنی ساری پسندیدگیاں ایک دوسرے کے ساتھ کو ریلیٹ کر لیتے ہیں. اور جب ہم ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے نا, تو جو چیزیں ہماری آپ پسند کر رہی ہوتی ہیں نا وہ بھی مجھے ناپسند ہونی شروع ہو جائیں گی. بالکل صحیح بات. بالکل 100%. دین سب سے امپورٹنٹ چیز جو سب سے بڑا گناہ ہے, جن شادیوں میں جہیز کی بحث شروع ہوتی ہے, ابھی بھی چل رہا ہے. چل رہا ہے. آپ دیکھیے کس لیول پہ جہیز جا رہا ہے. صحیح بات. خدا کی قسم وہاں اتنے مسائل اکر کریں گے, اتنے مسائل اکر کریں گے کہ آپ ان کو کبھی بھی کوپ اپ نہیں کر پائیں گے. اس لیے میں ہمیشہ چاہتا ہوں, حالانکہ یہ چیز جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کو بری لگ جائے گی, کہ I prefer love marriage. اور خدا کے واسطے یہی ایک طریقہ ہے جہیز کی لعنت سے چھٹکارا حاصل کرنے کا. اور جب آپ دیکھیے 2 دوست جب ہوتے ہیں نا, دنیا میں کوئی رشتہ ایکسپیکٹیشن کے بغیر نہیں ہوتا. آپ محبت میں سے بھی توقع نکال دیجئے تو دونوں محبت کے پلے کچھ نہیں بچتا. جب آپ لڑکی سے جہیز نہیں لیتے نا, تو آدھا کام تو آدھی محبت تو آپ نے ویسے ہی حاصل کر لی. بالکل صحیح. وہ اسی بات پر آپ کے پاؤں دھو کر بھی پیتی ہے کہ میرے ماں باپ کو اس آدمی نے ذلیل نہیں کیا. بالکل صحیح بات. اور وہ ایسا رشتہ, اور یہ گھر یہ جو گھر بنے ہوئے ہیں نا, مکان, جن کو مکان کہتے ہیں ہم, خدا کی قسم یہ عورت کے لیے بنائے جاتے ہیں. مرد کو تو کبھی ضرورت ہی نہیں تھی ان کی. یہ جس شخص نے عورت کو سنبھال کر رکھنے کا ہنر ایجاد کیا تھا, اس نے گھر ایجاد کیا تھا. ہوم بنایا اس نے, ہاؤس کو وہ ہوم بناتی آگے. ایک کمیٹڈ عورت اس مکان کو گھر بناتی آگے. لیکن یہ مرد کی فطرت تھی اس کو سنبھال کر رکھنے کی. تو یہ جو اب ہم باہمی جھوٹ ہیں, کہ میں معافی چاہتا ہوں, بہت سارے بڑے کامن لفظ ہیں کہ ڈونٹ کمپیئر می ود ادرس. میں گھر کی سب سے بڑی لاڈلی ہوں, میں پھر آئی ایم ناٹ این آرڈینری گرل. یہ والی چیزیں باز آئی. ہم سب آرڈینری ہیں. ہمیں کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کے لیے بڑا اسپیشل بننا ہے. اس کے لیے 2 طرفہ ایفرٹ چاہیے. اور میں آپ کو کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں, اللہ اس ڈاکٹر صاحبہ کو میں پھر 150 سال کی عمر دے. اللہ کی قسم لڑکیوں, اگر تم لوگ اپنے باڈی کی حفاظت نہیں کرو گی, اپنی فزیک کو خوبصورت نہیں رکھو گی, آپ مرد سے گلہ ہی کرتی رہو گی.
तनीसा में बुढ़ी भाभी बन जाओगी 150 साल पे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप खूबसूरत ही आप लगेंगी nutritionist क्योंकि हैं, आपको मेरे इस चीज बहुत का अच्छा। एहसास आप है। फिर भी अब देखो आप ये भी nutritionist कर हैं। लेगी मेंटेन, You can maintain उसको फिर yourself. जब देखता हूँ अल्लाह ताला इसको अपनी नजर बद से बचाए, आप दोनों अल्लाह नजर बद से बचाए, सबको आपको भी, बचाए, बल्कि हम सबको आप और सब हमारे खूबसूरत नाज़रीन लोग को। हो और इसी तरह अपनी फिजिक मेंटेन रख पावे तो मेरे लड़ती रही। गारंटी नहीं है ये, मैं अभी भी ये जरूर अपना पॉइंट तू ते लोच तल्ला होंदा ना है आप, तू ते आई दुनिया ते मेरे नाल लड़न वास्ते ने। वो खूबसूरती नहीं कह रहे, वो कह रहे आपकी फिटनेस। No, हर औरत खूबसूरत, हर मर्द खूबसूरत you होता है, should, अल्लाह का but this बंदा। is not a guarantee होना चाहिए। because और कोई underlying और तेनू कोई नहीं प्रॉब्लम समझ होता आनी ही है बीबी। है। नहीं, ये होता है सर, बहुत ज्यादा आप खूबसूरत देखिए, लोग यू होते हैं। स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ। बट आई ऑल्सो थिंक एक थोड़ा सा वो जो अभी आप बात कर रहे थे ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आम जिंदगी की मोनोटनी, ठीक है, जो आप वो बात कर रहे थे कि जो ये रिश्ता है इसके अंदर बोर्डम है ही है टू अ सर्टेन लेवल, उसको भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। एवरी डे इज नॉट गोइंग टू बी अब बामी से नहीं है boredom? तो मैं यही कह रही हूँ ना, हाँ? यही कह रही हूँ कि आप जो ये बात कर रहे हैं, सही हो तुम, बिल्कुल सही कह रही हो। वन थिंग, हाँ। बट एट द सेम टाइम आप सेम इंसान के साथ रहना, एवरीडे जिंदगी की मोनोटनी को एक्सेप्ट करना कि रोज कुछ ये एक्साइटिंग वक्त नहीं पता होगा, कहाँ, रोज ये सारा लफ्ज नहीं पता होगा। कहाँ से है नायाब, मैं फिर तुम्हें बताऊं। मैंने कहीं एक जुमला कहा कि लड़की को उसकी मर्जी के कुत्ते से ब्याह दीजिए, वो आपको उसको शेर बना देगी, लेकिन आप अपनी मर्जी के शेर से ब्याहिए उसको, वो उसको कुत्ता बना देगी। लड़की की शादी जब उसकी मर्जी से होती है अफसोस होनी ना, चाहिए। वो बहुत सारी चीजें जाहिर कॉम्प्रोमाइज है। कर लेती है। मैं ये आपको तो बता दूं, जाहिर, ये तो आई एग्री विद इट 100% दिल कि होता जो है इस आपका जहेज का भी जो इशू है, अगर कंसेंशुअल मैरिजेस या लव मैरिजेस हों तो क्योंकि अंडरस्टैंडिंग होगी पहले से, जो लड़का है वो भी स्टैंड ले सकेगा, वो ये बात कम्युनिकेट कर सकेगा अपने पेरेंट्स के साथ, जो लड़की है वो भी ये जो उसकी ख्वाहिश है मैं तो कि हिजड़ा उसके कहता हूं उन parents- मर्दों को कि जो parents दहेज burden लेते ना हैं, हो, literally। तो नहीं, वो बिल्कुल ये हाँ। वाली चीजें तो होंगी, बट एट द सेम और टाइम मैं मैं हिजड़ा ये को नहीं मतलब वो समझती मतलब कि मैं उनको ट्रांसजेंडर को आई रिस्पेक्ट, लेकिन मैं उनको नामर्द कहता हूँ, ये सही लफ्ज है उनके लिए। क्योंकि वो नहीं बिल्कुल कह पाते और ज्यादा अरेंज मैरिजेस के अंदर वो नहीं कह पाते, बिकॉज वो आपका जब कनेक्शन नहीं है दूसरे के साथ, तो आप उसके लिए ये बार्गेनिंग करना नहीं चाहते। सीधी सी एक बात है, ये बार्गेनिंग ही It है is ना। like selling a buyer. Yeah, I tell it you, is. अभी it जैसे is हमने like बात selling a की, buyer. अभी खलील साहब भी कह रहे थे, आप भी कह रही थी, हम सब यही बात कर रहे थे कि हमने बहुत डिस्कशन की, ठीक है, बट ग्राउंड रूल्स कुछ बना लेने चाहिए। आज हम कुछ नाजरीन को दे भी कि वो घर लेके जाएं, बिल्कुल ठीक है। उसमें अभी बड़ा अच्छा पॉइंट इन्होंने कहा कि मोनोटनी हो जाती है। मोनोटनी ये होता है कि Boredom आता है। एग्जैक्टली Boredom होता है, Every day उस cannot be a same boredom day. को खत्म करने You're के right. लिए आप लोग हफ्ते में 2 दफा आउटिंग करें, मियाँ बीवी, बच्चे नहीं, मियाँ बीवी दोनों जाएं और किसी बाग की सैर कराएं, जरूरी नहीं बाहर से खाबे खाएं। और ना लम्मा टूर पे आप दिए। नए कपड़े पहने, आप परफ्यूम लगाएं। मैंने एक जगह पढ़ा था कि जो सेंसेस है ना वो इग्नाइट होते हैं अच्छी फ्रेग्रेंस से। अच्छा यहाँ डॉक्टर मुझे ना रहते, आपकी मेहरबानी, जी जी, आप 2 दिन जाएं, हाँ। सारे घरों में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। किधर जाने की बात, मैं मोटर बाइक पे बिठा दे, बोतल ही पिला लें। बात जगह ट्रस्ट भी, बात जगह मोटर। आप वो जो कहना चाह रही थी ना, व्हाट आई अंडरस्टैंड, उस बोर्डम को बिलीव कर लीजिए कि ये भी एक सेशन चलेगा, ये भी है। इसको हमने टॉलरेट करना बट शी इज राइट हाँ। कि उसमें आप मोमेंट्स ऑफ एक्साइटमेंट ऐसे ला सकते हैं ना। वो किसके लिए, मैं किसके लिए बात कर रहा हूँ, ट्रस्ट मी, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल उनके पास नहीं है वसाइल कि वो 2 दिन के लिए जा सके। हाँ सही कह रहे हैं। फिर क्या है, बहुत सारे मसाइल ऐसे घरों में अक्कर कर जाते हैं, कितने लाके गया है उन्होंने, मैं आपको सही बोल रहा हूँ। ये जवाब दे दे के मेरी लड़कियां वक्त से पहले बूढ़ी हो गई हैं। बिल्कुल सही। बिल्कुल यहीं से सही, हम बिल्कुल सही। एक और अपने गेस्ट को ऐड करते हैं। जी मेरे बताइए कौन हमारे साथ अभी मौजूद अली है? जंजानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, एस्ट्रोलॉजर हैं, और नाजरीन बहुत से मसाइल इनके पास तो आते ही होंगे, कारोबारी हो, लव मैरिज हो, पसंद की शादी हो या अरेंज्ड मैरिज हो। दूसरी जंजानी शादी? साहब अस्सलाम वालेकुम। दूसरी शादी भी हो सकता है मीरब, कोई भरोसा नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कैसे हैं सर आप? वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह, आप शुक्र। सब खैरियत से ठीक हैं? जी जी वेलकम टू मेरी सहेली। सर ये बताइए, मेरे जहन में एक फटाफट जी, क्वेश्चन बहुत आया है। शुक्रिया, आपके पास माशाल्लाह। जायचा तो निकलवाने आते होंगे सब, शादी का, करियर का, बहुत सी चीजें हो सकती है, मोहब्बत का, नाकामी का, ब्रेकअप्स का भी। हाँ। लेकिन कोई आपके पास दूसरी शादी के लिए जायचा निकलवाने आते हैं? उसकी शुरा कितनी है? वो तो बिल्कुल, मर्द नहीं मर्द अक्सर जायचा, केसेस सीधा के ब्याह अंदर कर ऐसा लेते होता है कि दूसरी शादी हैं। सही गल है।
बल्कि ऐसा नहीं है इसमें। मैं इक्वली यहाँ पे बताऊंगा। मैं अभी माशाल्लाह आप सबकी गुफ्तगू सुन भी रहा था। सब काबिल एहतराम मेरी बहनें और खलील भाई मौजूद है यहाँ पे। बड़ी अच्छी गुफ्तगू चल रही है, और बिल्कुल ऐसा होता है कि सिर्फ मर्द नहीं, खवातीन भी अक्सर आती हैं जो कि अपनी शादी से नाखुश होती हैं और ये जानना चाहती हैं आखिर कहाँ पे कौन सी ऐसी गलती हो रही है, कौन सा ऐसा मिसमैच है जिसकी बेस के ऊपर हमारा रिश्ता नहीं चल पा रहा और हम इसको छोड़कर दूसरी दूसरी शादी की तरफ जाएं। अब इसकी रूट कॉज समझना बेसिकली बड़ा ज़रूरी होता है, चूंकि हमारा जो काम है सितारों का कंपैटिबिलिटी मैच करने का, इस दुनिया में इंसानी वजूद जो है वो 4 किस्म के अनासर से पैदा होता है: अर्थ, एयर, वाटर एंड फायर। यानी आग है, पानी है, हवा है और मिट्टी है। तो जब आग और पानी इनका मिलाप नहीं होता, इसी तरह हवा और मिट्टी इनका मिलाप नहीं होता, तो चीजें आपस में मिसमैच हो जाती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये देखना बड़ा जरूरी होता है कि जिस वक्त हस्बैंड वाइफ दोनों निकाह कर रहे होते हैं, हमारी नज़र में वो वक्त निकाह का बड़ा अहम होता है, तारीख बड़ी अहम होती है। क्योंकि जिस वक्त दोनों मियाँ बीवी बंधन में बंध रहे हों, उनके रिश्ते की पैदाइश होती है, और वो बेसिकली बताता है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या सलूक करेंगे, एक दूसरे के साथ आगे किस तरह से जिंदगी गुजारेंगे। और मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है कि बड़ी अच्छी कंपैटिबिलिटी होती है हस्बैंड वाइफ की इंडिविजुअली अगर देखा जाए बिफोर मैरिज, लेकिन शादी के बाद उनकी इब्तदा एक ऐसे नहस टाइम पे ख़राब वक्त में हो जाती है। कोई ग्रहण ग्रहण का टाइम चल रहा हो, कोई नहस घड़ी चल रही हो, मून इन स्कॉर्पियो हो, जिसमें आइमा मासूमीन के भी फरामीन है कि इस वक्त में शादी ब्याह या कोई भी नेक काम जो है उसको शुरू करने में एहतियात करनी और चाहिए ये या कुछ सीरियस सदका कंसर्न्स खैरात होते देकर हैं शुरू जंजानी करना साहब? चाहिए। तो इस टाइम की बेस निकाह का बिल्कुल वक्त और ये होते जो हैं। आपने मेरी बातें की। प्रैक्टिसेस में मैं एक तवील अरसे से इन चीज हम्म, बिल्कुल सही, हर बिल्कुल सही। चीज में देखिए, हर हाँ। चीज में आपकी अगर इब्तिदा अच्छे वक्त में नहीं होगी तो आगे चल के प्रॉब्लम्स आएंगी। कि अगर आप बरसात में बिल्डिंग की बुनियाद रखेंगे तो घर गिर सकता है। तो बिल्कुल हमें सही, जी अच्छे बिल्कुल वक्त का जी सही। जी। इंतजार करना होता है। इसी तरह रिलेशनशिप में कि आपका मैच आपके लाइफ पार्टनर के साथ या आपके इवन लव पार्टनर के साथ कैसा है। क्योंकि इसमें दो चीजें एस्ट्रोलॉजी के अंदर, मोहब्बत को हम एक और घर से देखते हैं, हम्म। मियाँ बीवी को हम एक और हाउस से देखते हैं। कि आपकी जो भी मोहब्बत होगी हम्म। वो अल्टीमेटली उसने आके आपकी बीवी या आपका शौहर ही बनना है। हम्म। वहां से चीजें डिफरेंट हो जाती हैं। हम्म। और इसी तरह आगे चल के फिर कंपैटिबिलिटी इश्यूज आ जाते हैं। फिर हम बहाने ढूंढते हैं कि हमारा मिजाज नहीं मिल रहा, हमें तनख्वाह पूरी नहीं मिल रही, मेरी हम्म। ख्वाहिशात का एहतराम नहीं हो रहा, उसकी माँ ने ये कह दिया, उसकी बहन ने ये कह दिया। तो हम्म। असल प्रॉब्लम जो बुनियाद होती है वो खराब वक्त की वजह से होती है, जिसकी वजह से आगे चल के फिर प्रॉब्लम आते हैं। और बिल्कुल खवातीन हैं या मर्द हैं, मैं दोनों का कहूंगा कि मेरे पास जो केसेस आते हैं, दोनों की ख्वाहिश होती है अगर वो अपनी शादी से नाखुश हों तो अपने रिश्ते को, अब जो अभी जिस माशरे से जिस वक्त से हम गुजर रहे हैं, तो वो अपने रिश्ते को तब्दील करने के बारे में संजीदगी से सोचते हैं। बिल्कुल सही। बिल्कुल ऐसा संजानी साहब, होता है। कतई कलामी की माजरत चाहती हूँ, एक कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं मुकद्दस बात कर रही हूँ लाहौर से। जी जी, मुकद्दस और फरमाइए। मेरा सवाल जंजानी साहब से है। मैं इनको काफ़ी देर से फॉलो कर रही हूँ और मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि मेरी इंगेजमेंट को 5 साल हो गए हैं, लेकिन शादी में कोई ना कोई मसले मसाइल आते रहते हैं कि शादी तक बात जा ही नहीं पा रही। तो आप प्लीज़ मुझे बताएं कि क्या मसले हैं। जी, 5 साल हो गए एंगेजमेंट को। मुकद्दस, जी, आप हमारे इनकी साथ डेट ऑफ कॉल पर बर्थ हैं? जी जी, अपना नाम जंजानी साहब आप बात कीजिएगा, डायरेक्ट मुकद्दस से, वो कॉल पर ही है। मुकद्दस बेटा, मुझे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। डेट ऑफ बर्थ क्या आपकी? 6 दिसंबर 1999। और आपको टाइम ऑफ बर्थ अपना मालूम है? जी, टाइम ऑफ बर्थ आपका मुकद्दस क्या है? टाइम ऑफ बर्थ आपको नहीं, मालूम है टाइम ऑफ अपना? बर्थ और नहीं सिटी टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता मुझे। और सिटी ऑफ बर्थ मुझे अपना बस बता दो। लाहौर। ठीक है, मैं बिल्कुल आपको इसका जवाब देता हूँ।
ऐसा है कि मुकद्दस के बर्थ चार्ट के अंदर अगर मैं देखूं जिस डेट पे ये पैदा हुई हैं, इस डेट के मुताबिक इनके बर्थ चार्ट के अंदर मार्स मौजूद है 4th हाउस में। ये मांगलिक है कि हमारी एस्ट्रोलॉजी के अंदर एक टर्म होती है मांगलिक। कोई लड़का हो या लड़की हो, उनकी अज़दवाजी जिंदगी शुरू होने में ताखीर हो जाती है। और 7th हाउस के अंदर सैटर्न जो है वो भी खराब हालत में बैठा हुआ है कि प्रॉब्लम बेटा ये नहीं कि अभी शादी आपकी ताखीर से हो रही है, एंगेजमेंट होके शादी के बाद भी इश्यूज आ सकते हैं। तो मेरा इनको मशवरा है कि एक तो सितंबर 2024 के बाद इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि शादी होने के हवाले से बेहतरी के इम्कानात बिल्कुल नज़र आ रहे हैं। और कोशिश करें कि जब भी ये निकाह करें, निकाह का डेट और टाइम ज़रूर अच्छा पूछ लें कि शादी के बाद कोई इशू जो हैं वो इनको ना आ सके। संजानी साहब बहुत शुक्रिया। इसी के साथ साथ एक लाइटर नोट पर एक सवाल करना चाहूँगी कि ये दूसरी शादी का जो ये जो मर्द जो बात करते हैं, लड़कियां इनसे करती हैं, कोई हाथ में ऐसी लकीर भी होती है कि पता चल जाता है 2 शादियां तो उससे पहले ही ना की जाए फिर? अच्छा सवाल है, मुझे तो पसंद आया है। जी बताइए संजानी साहब। मैंने पहले दूसरी का मैंने